So, hello everyone, welcome to my YouTube channel, Simranji Lakhmani for you guys. And so, let's begin with our nerve cell and its detailed explanation. As we have this topic in our book for the O level biology, we have some specific cells that we should know about. So, from that, with like one of the cells, we have the nerve cell, and we're gonna study it into the detail so you guys can have an idea what is the actual specific use of it and why it's so different from other cells of our body. So let's begin. So starting with a good color today. Great. So today we will discuss about the nerve cell, or you can name it as neuron too. We do also tell it like name it as neuron. ठीक है. So I hope it is clear. So it is a cell. Like we all know what is a nervous system, right? So nervous system includes the brain and the spinal cord and our neuron cells. So the nervous system, what is the work of the nervous system? It is just if we feel something, if we for instance, if I touch something hot, how do I detect, how do my body detects that I have felt something hot in my hands? अगर मैंने किसी चीज़ को टच किया और वो गर्म है तो मुझे कैसे पता चला कि वो गर्म है? तो वो all the help of the nervous system, the help of the neurons, हमारे वो मैसेज सेल बॉडी तक और ब्रेन तक जाता है, और ब्रेन क्या करता है उस इमेज को whatsoever the thing we felt, it detects, it tells us that you felt this thing, ठीक है, and then it explains us, and that through that it send one more neuron to our the organ and tells that you have felt something hot. So for instance, if you touch something hot, in just microseconds you just got to know it's hot. So you can imagine that how fast this system works, right? So we will discuss this thing in the grade. I'm just giving a an introduction or a brief introduction. So yeah, let's begin. So the nerve cell is the basic unit, or you can say basic structural and functional unit of nervous system. अब structural ऐसा है because हमारे पास nervous system को structure भी यही देता है. Functional because सारा काम जो करता है वो न्यूरॉन करता है, ठीक है. मैसेज को ट्रांसमिट करना, मैसेज को जनरेट करना. सो हियर जो नर्व सेल उनके दो काम है. द मेन टू वर्क ऑफ नर्व सेल इज टू जनरेट, ठीक है, एंड ट्रांसमिट what nerve impulses, or you can say electrical impulses or chemical impulses. We will discuss this thing. So generate and transmit what messages. You guys can say I said nerve impulses, but we will discuss what are nerve impulses later on. So messages like if something hurted me, ठीक है, अगर मुझे एक ball ठीक है in my hand, I just got hurt. How I detect, how my body detects that, oh my god, I just got hurt, right? I should feel some emotions. So the neuron takes and it generate, which means कि जब मुझे कोई चीज़ गर्म लगी या जब मुझे कोई चीज़ हिट हुई तो जो मेरे न्यूरॉन होंगे वो एक नर्व इम्पल्सेस, या तो आप बोल सकते हो उसे मैसेजेस जनरेट करेगा और देन उसे ट्रांसमिट करेगा टू आवर ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है. सो द मैसेजेस, जो हमारे पास मैसेजेस होते हैं उसे हम बोलते हैं नर्व इम्पल्सेस, ठीक है. अब जो हमारे पास मैसेजेस हैं वो कैसे ट्रांसफ़र होता है, वो ट्रांसफ़र दो तरह के में हो सकता है, हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है. दो तरह से वो हो सकते हैं हमारे ट्रांसफ़र. नंबर 1 अगर हम बात करें, हम इस ट्रांसफ़र को बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, ठीक है. सो इट कैन बी डन इन 2 ways. The number 1 way, if I tell you, is like electrical messages, or you can say chemical. अब chemical क्या होता है वो भी हम पढ़ लेंगे भी. So
if I'm not going so fast, let me explain you that chemical. Oh, I have written. Okay, so let me just get you know picture which will definitely help you guys to imagine what I'm teaching. ठीक है. So here you guys can see a neuron. ठीक है. तो electrical क्या होता है? electrical में क्या होता है हमारे पास हमेशा जो हमारे मैसेजेस होते हैं वो ट्रांसफर होता है विद इन द न्यूरॉन. अब जैसे कि ये है तो इसमें विद इन द न्यूरॉन हमारे पास ट्रांसफ़र होती हैं चीज़ें. ठीक है. विद इन द न्यूरॉन हमारी चीज़ें ट्रांसफ़र होंगी. यू गाइस कैन सी विद इन द न्यूरॉन हमारी चीज़ें ट्रांसफ़र होंगी. सो इलेक्ट्रिकल में मतलब कि हमारे पास डेंड्राइट्स होते हैं. ठीक है. डेंड्राइट्स आर लाइक द लॉन्ग शॉर्ट ब्रांचेस जो रिसीव करता है मैसेजेस को. ठीक है. अब फिर उससे हमारे पास बॉडी सेल के अंदर जाता है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर, फिर ये एक्सॉन है यहाँ तक जाता है. ठीक है. तो ये सारा काम जो होता है वो इलेक्ट्रिकल में होता है. इलेक्ट्रिकल आप बोल सकते हो कि विद इन न्यूरॉन, मतलब न्यूरॉन कितना बड़ा है आप देख सकते हो. द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन इज़ क्वाइट बिग. तो ये जहाँ पर जो हमारे पास मैसेजेस का ट्रांसफ़र न्यूरॉन के अंदर ही जो हो रहा होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल. केमिकल जो होता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू सेकेंड न्यूरॉन. ठीक है. दैट इज़ केमिकल. ठीक है. अब नाउ वी विल टॉक अबाउट कि ये सब चीज़ें होती कैसे. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूँ सबसे पहले अगर मैंने कोई चीज़ टच की, आई जस्ट टच समथिंग, आई जस्ट गॉट हॉट, तो मेरे ये मैंने बोला कि हमारे जो न्यूरॉन होते हैं वो जनरेट करते हैं नर्व इम्पल्सेस. अब वो क्या करते हैं, हम कुछ भी चीज़ को अगर मैंने कोई गर्म टच कर लिया चीज़ तो क्या हुआ, मैंने सेंस किया उस चीज़ को, तो हमारे पास कौन से न्यूरॉन्स होते हैं जो जनरेट करते हैं, दैट आर सेंसरी न्यूरॉन्स. 3 तरह के न्यूरॉन्स होते हैं. नंबर 1 न्यूरॉन इज सेंसरी न्यूरॉन जो बताता है कि आपने कुछ गर्म टच किया, आप किसी ने हर्ट किया. ठीक है. तो वो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं. और सेंसरी न्यूरॉन्स का काम होता है टू जस्ट टेक द इंफॉर्मेशन, टू टेक द जनरेटेड नर्व इम्पल्सेस. ठीक है. फ्रॉम पेरिफेरल ऑर्गन टू द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है. ताकि वहाँ पे जनरेट होकर इमेज आए हमारे पास. फिर हमारे पास होता है मोटर न्यूरॉन. मोटर न्यूरॉन का काम होता है कि वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से हमारे जो पेरिफेरल ऑर्गन तक लेके आए. ठीक है. उसका वो काम होता है. ठीक है. एंड यहाँ पर आई होप यू अंडरस्टूड. तो जब हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन्स वहाँ पे हमारे पास ब्रेन तक लेके जाते हैं, दे डिटेक्ट कि हमें हुआ क्या है. ठीक है. हमें हुआ क्या है. तो उसके बाद जब वो डिटेक्ट कर लेता है, जो इतने मिनट कम सेकंड्स में करता है वो भी, इट्स जस्ट कि वो मोटर न्यूरॉन्स है हमारे पेरिफेरल ऑर्गन के पास वापस आ रहे होते हैं. ठीक है. नाउ if I tell you that there are 3 types of neurons. Number 1 we have sensory motor neuron, then we have interneurons. ठीक है. हमारे पास होता है interneurons. Interneurons are the between of the sensory neuron and the we can say the motor neuron. ठीक है. sensory neurons और motor neuron के बीच में होता है. अभी क्यों होता है, why they are used. ठीक है. ये भी न्यूरॉन ही होता है. ये एक मेरे पास न्यूरॉन आ गया. there is a one more neuron, there is a one more neuron. ठीक है. so there are also neurons, but actually ये क्या करते हैं, ये टाइम सेविंग होता है. मतलब हमारे जो ट्रांसफ़र को, जो नर्व इम्पल्सेस के ट्रांसफ़र हो रहा होता है उसे जल्दी करते हैं, उसे जल्दी फंक्शन में लाता है ताकि जल्दी से वो चीज़ें ट्रांसफ़र हो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस जल्दी से आएँ, हम जल्दी से सेंस कर पाएँ उस चीज़ को. ठीक है. तो ये सारा होता है द वर्क ऑफ द 3 न्यूरॉन टाइप्स. ठीक है. अब इफ़ आई टोल्ड यू अबाउट द केमिकल न्यूरॉन. ठीक है. केमिकली जो नर्व इम्पल्सेस, केमिकल मैसेजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, लेट मी टेल यू. आई टोल्ड यू इट हैपन्स बिटवीन, लेट मी मेक अ न्यूरॉन. डोंट लाफ ऑन माई ड्राइंग गाइस. It's just a neuron. ठीक है. So we have this neuron and this neuron. ठीक है. अब इस न्यूरॉन में there is a space between one neuron. There is always a space between one neuron and the second neuron, and that space is known as synapse, or you can say synapse junction.
ठीक है, उसे हम बोलते हैं साइनैप्स और साइनैप जंक्शन बोलते हैं. So there is a space between nerve cell. So the chemical, there is a chemical. I told you there are chemical messages. तो यहाँ पे हमारे पास होते हैं टर्मिनल बटन्स. टर्मिनल बटन्स को हम ये बोल सकते हैं कि there is wait. यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे डॉट्स की तरह बना होता है जिसे हम टर्मिनल बटन्स बोलते हैं, जहाँ से हमें पाथवे मिलता है, जैसे कि हमारे जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं वो केमिकल में ट्रांसफर होते हैं, और न्यूरो ट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, वो केमिकल मैसेजेस होते हैं, ठीक है, जो हमारे एक सेल टू दूसरे सेल में जा रहे होते हैं. तो जो केमिकल्स नेम जो होते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है, वो जाते हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मैसेजेस क्यों नहीं जाते हैं. इलेक्ट्रिकल में हमें क्या करना होता है, हमें हमेशा डायरेक्ट कांटेक्ट में चीज़ें रखनी होती हैं, बट यू गाइस कैन सी यहाँ पे स्पेस है, तो उस वजह से चीज़ें डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, इसलिए हम केमिकल इम्पल्सेस का यूज़ करते हैं. फॉर इंस्टेंस इफ़ वी सी दिस इमेज, this one, first one, here's a vesicle, then we have neurotransmitter, and there we have receptor. Dendrites, दूसरे सेल के dendrites जो रिसीव कर रहे हैं उस चीज़, ठीक है. I hope it is clear. Yeah, we are almost done with the basics, and yeah, so let's discuss one more thing very important. How this entire system works. Let's us just have a sense of it, and then after that we'll focus. Right now I'm discussing the functional. Next video will be about the structure of the neuron cell, ठीक है. So first of all we have sensory input, ठीक है, हमारे पास sensory input आता है which is done by sensory neuron, ठीक है, जो हमारे पास एक इनपुट दे देता है. देन हियर वी हैव न्यूरॉन प्रोसेसिंग which means the messages are being transferred, ठीक है, to our brain and the spinal cord, to the central nervous system, ठीक है. और यू कैन से द सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होगा वो वहाँ पे रिएक्ट करेगा, यहाँ तक वो ब्रेन न्यूरॉन प्रोसेसिंग में वो ब्रेन तक पहुँच जाएगा, एंड इट विल बी रिएक्टिंग, ठीक है, वो डिटेक्ट कर रहा होगा. And in the end, what happens? In the end, we get the output. ठीक है, output by motor output. ठीक है, we get a motor output of it. So this is the entire system here, whatsoever, how messages are transferred and everything. I hope you understood my today's video. I hope it was cleared. My next video will be about the structure of the neuron cell. So stay updated, and please like, share and subscribe my YouTube channel and this video. Thank you so much.